Hello everybody, class 12. This is lesson 6, the poets and pancakes. This is written by Ashoka Mitran and this is lesson is from Flamingo. In this video, we will learn about the summary of the lesson and poet and pancakes. What do you mean by the chapter there? As you have seen in the animation, there is the animation given of the Gemini Studio. You know, Gemini Studio, RK Industry. This is very famous in Bombay industry, means in making the movies. And I think most of the time you have seen this kind of statue of the Gemini Studio in the beginning of the movies. And this beginning of the moving statue, this is the founder, or this is the Gemini Studio symbol. So in this video we will come to learn about the Gemini Studio, how it was built there, how it was successfully built, and how and who was the founder of this Gemini Studio. Poets means here some poets are given, and pancake is the name of the makeup brand there. Okay, makeup brand, pancakes means here the brand name of the makeup. Let's come to the chapter. The very first we will learn about the character chart. In the character chart, the first is given Ashoka Mitran. As you know, this chapter is written by Ashoka Mitran. So he is the main person, main role. He will play the vital role in this chapter. Next is there Kotha Mangalam Subbu. Kotha Mangalam Subbu is also the playing very important role here. And he came there to become actor, but by you can say unfortunately he was there just only makeup man, and he was doing the makeup of actor and actress. Next is office boy. This office boy also came in this movie, in this film industry, to become an actor, but unfortunately he was doing the makeup of the crowd. Okay, whenever the crowd was playing the role there, that time this office boy has to do the makeup of that crowd. And this is Kotha Mangalam Subbu. He is known as the number two director also. He is also known as with the name of number two director of the studio. And Ashoka Mitran is the writer already. Next is S.S. Vasan. S.S. Vasan was the principal, and he was the principal of Subbu. And we can say he was the founder of this Gemini Studio. This is Gemini Studio. Okay, so who was S.S. Vasan? S.S. Vasan was the founder of Gemini Studio. Means जिसने इस Gemini Studio की नींव रखी थी, that person is known as S.S. Vasan. जैसे RK इंडस्ट्री है, राजकुमार इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, और ये Gemini Studio हो गया. ये very फेमस जो है ये इंडस्ट्रीज के नेम है यहाँ पे. और जब भी कोई मूवी बिगिन होती है तो सबसे पहले इस तरह के साइन आते हैं. इट मीन्स ये जो मूवी है वो किसने बनाई है, जो एस वसन है, वो जो फाउंडर है इनके, तो उनके अंडर में, उनके डायरेक्शन में मूवी बनी होती है, जिनमें भी इनका सिंबल आता है. नेक्स्ट इज लॉयर. अब यहाँ पे एक लॉयर है. वन लॉयर इज देयर हु इज विलिंग टू पुट ऑन खादी. Okay, like Gandhiji, he was willing to put on khadi, and here sometime he was just putting pant, shirt and a tie, only sometime, but most of the time he was in the khadis. So these are the characters. First is Ashoka Mitran, who is the writer of this letter. Next is Subbu, who is known as the second number director, and he came there to become actor, but unfortunately he was doing the makeup of hero and heroines. Next is office boy. He also came there to for what, to become an actor, but unfortunately he was doing the makeup of the crowd. Next is the lawyer. He was also responsible for losing the job of most of the young personalities. मीन्स जो लॉयर था रिस्पॉन्सिबल था उन यंग पर्सनैलिटीज के लिए, उन यंग एक्टर्स के लिए, जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अपनी जॉब खो दी थी. एंड एस.एस. वसन इज द फाउंडर ऑफ दिस Gemini Studio, and he was the principal of Subbu. Right. Next is the about the story. What about the story is given there? The following chapter is from Ashoka Mitran book My Years with the Boss. Means यहाँ पे जो अशोका मित्रन है, उन्होंने ये चैप्टर कहाँ से लिया है, My Years with the Boss से लिया है, ठीक है. और इस बुक में से इसने एक चैप्टर उठाया यहाँ पे, और इस चैप्टर को उसने क्या किया, अशोका मित्रन ने पोइट एंड पैनकेक्स के नाम से यहाँ पर एक चैप्टर लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि My Years with the Boss मतलब बॉस के साथ उसका बीता हुआ टाइम कैसा था, वो उसने इस एक बुक में लिख करके एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है. और एंड दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम दैट बुक My Years with the Boss, and in this he basically recounts his years at the famous Gemini Studio. और
इसके बिहाफ पे, इस चैप्टर, इस बुक के बिहाफ पे, यहाँ पे इसने अपने रिकाउंट्स में से दोबारा से उसने रिमेम्बर किया है उन दिनों को जब वो जेमिनी स्टूडियो में वर्क करता था। ठीक है, कौन? अशोका मित्रन। नेक्स्ट इज अबाउट द ऑथर। अब ऑथर के बारे में यहाँ पे फिर से क्या, अशोका मित्रन के बारे में फिर से क्या बता, दिस वाज अबाउट द स्टोरी, नाउ दिस इज अबाउट द ऑथर। अशोका मित्रन वाज एन इंडियन राइटर and he has written more than 200 short stories, 8 novels and some 15 novels especially there. Most of his work has also been translated into different languages, and the languages are like English, other English languages are there including Hindi, Malayalam and Telugu. Means his short stories, his novels are converted or translated in different languages also, and languages are given there. Next is the theme of the story. Why the theme of the story is taken there? It gives an insight into how different people work together despite their casual dislike. मीन्स कैजुअल डिसलाइक मीन्स देखो नॉर्मली जैसे होते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे से जो काफी हेट करते हैं, एक दूसरे के एनिमीज होते हैं, अगर लगता है कि हाँ भाई ये ज्यादा फेमस हो गया तो उसे जेलस फील करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो थीम है स्टोरी का इसी से लिया गया, पोइट्स एंड पैनकेक्स, जो ब्रांड नेम है यहाँ पर मेकअप किट का वो, और जो पोइट्स मतलब जो भी यहाँ पर लोग आए थे वो डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन थे, डिफरेंट रिलीजन से यहाँ पर वो आए हुए थे। देन ऑल्सो देयर वाज unity. Now come to the key points of the chapter. The lesson is taken from the book My Years with the Boss, and this is written by Ashoka Mitran. You know it well. Second point is that in this he talks about all the elements that kept Gemini Studio running. Means इस chapter में जो अशोका मित्रन उन्होंने वो उन सारी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड किया है जो भी उस टाइम पे जो जेमिनी स्टूडियो था उस टाइम पे इंक्लूड किया गया था। उसमें क्या क्या था? पैनकेक से लेकर, पैनकेक क्या था यहाँ पर, जो मेकअप मटेरियल होता था वो पैनकेक ब्रांड का लिया जाता था यहाँ पर, तो उस मेकअप मटेरियल से लेकर के जो ऑफिस बॉय था वहां पर उसको भी इंक्लूड किया है, जो मेकअप डिपार्टमेंट में मेकअप करता था क्राउड का, और जो सुब्बू था उसको भी यहाँ पर लिया गया है, लॉयर को भी यहाँ पे लिया गया है। एवरी एलिमेंट हेल्प इन मेकिंग जेमिनी स्टूडियो वेरी वेरी फेमस। तो उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि जो अशोका मित्र है वो हमें ये रियलाइज करवाना चाहते कि ये जो जेमिनी स्टूडियो है, ये जेमिनी स्टूडियो फेमस हुआ बिकॉज ऑफ एवरीबॉडीज कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ऑफ द कोलैबोरेशन ऑफ एवरीबॉडी। नेक्स्ट इज देयर इट इज अबाउट हिज टाइम व्हेन ही वर्कड इन जेमिनी स्टूडियो। अब ये सारे इंसिडेंट कब की हैं, ये सारी हैपनिंग कब की है, जब वो यहाँ पर काम करते थे। इट वाज क्वाइट अ फेमस फिल्म स्टूडियो बैक इन दोज डेज, और उस टाइम पे भी ये जो जेमिनी स्टूडियो था इट वाज वेरी वेरी फेमस and it was very successful studio also. We learned that अशोका मित्रन job is to cut. अब अशोका मित्रन की क्या जॉब थी भाई, यहाँ पर वो क्या काम करते थे? He was cutting the clippings of newspaper. न्यूज़पेपर से जो उसको सही लगती थी कि यस ये जो न्यूज की कटिंग्स हैं उनको काट लेते थे और एक फाइल में उसको मेंटेन करते थे। इट वाज द जॉब ऑफ अशोका मित्रन। अब ये चैप्टर अशोका मित्रन ने लिखा है, बट अशोका मित्रन काम क्या करते थे यहाँ पर? वो न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स होती थी, कटिंग्स होती थी, उनको काट करके एक फाइल मेंटेन करते थे। इट वाज द जॉब ऑफ अशोका मित्रन एंड एवरीबॉडी वाज जस्ट थिंकिंग दैट ही वाज डूइंग नो जॉब। हर कोई क्या सोचता था कि वो तो कोई काम करता ही नहीं है, मतलब वो तो ऐसे यहाँ पर इंडस्ट्री में, किसके बारे में? अशोका मित्रन के बारे में सब लोग ऐसा ही सोचते थे। Now some more points. People usually thought that he was not doing anything and delivered a lecture to him, venting out their own frustration and anger on him. कहते कि जो अशोका मित्रन थे वो क्या थे, उनको मतलब कुछ नहीं करना था, कोई काम तो करते नहीं थे, वो जस्ट लेक्चर झाड़ते रहते थे, किसके ऊपर? अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते थे, अपना गुस्सा निकालते रहते थे दूसरों के ऊपर। मीन्स जो अशोका मित्रन उनके बारे में लोगों की ऐसी थिंकिंग थी ओके कि वो कोई काम नहीं करते, बट he was doing the cutting of the newspapers and maintaining a record there. Next is he begins by telling about the makeup material that the Gemini studio bought in truckloads. अब वो यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर ट्रक लोड हो के आते थे, किसके? पैनकेक ब्रांड का जो मटेरियल होता था मेकअप का उसके, ठीक है। एंड मैनी फेमस एक्टर्स के जो फेस पर उसको अप्लाई किया जाता था। देन इन द ह्यूमरस वे, अब वो यहाँ पर हंसते भी हैं और ह्यूमरस वे से वो क्या कहते हैं? ही बिगिंस
क्रिटिसाइजिंग, जो क्रिटिक क्विजिंग है, क्रिटिक क्विजिंग करते हैं मेकअप डिपार्टमेंट का। यहाँ पर ना अब वो मेकअप डिपार्टमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पीपल लुक अगली। कहते हैं कि ये जो था, ये जो डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट था, इनकी वजह से जो थे वो लोग बहुत ही भद्दे से भी दिखाई देते। जैसे कई बार मेकअप करते हैं तो जैसे मूवीज के लिए मेकअप करते तो बहुत ओड से भी दिखाई देने लगते थे। तो कहते कि ये लोगों के लिए इस तरह का जो मेकअप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज देयर एंड दैट देयर वाज अ स्ट्राइक हिरार्ची दैट वाज फॉलोड इन मेकअप डिपार्टमेंट। अब मेकअप डिपार्टमेंट में एक और बात थी कि यहाँ पर इनकी जो लाइट्स होती थी ना, इनकी लाइट इतनी ज्यादा तेज होती थी कि मिरर के साथ टकरा के जब वो जो लाइट उनके फेस के ऊपर आती थी वो बहुत ज्यादा हीट करती थी। और मेकअप डिपार्टमेंट में, मेकअप जो रूम है उसमें बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था हीरो हीरोइंस के लिए। तो यहाँ पर इसने इसको क्रिटिसाइज किया कि कैसे जो मेकअप रूम में बैठते थे, कौन, हीरो हीरोइंस जैसे मेकअप करवाने के लिए बैठे, तो बहुत मुश्किल हो जाता था वहां पर बहुत ज्यादा हीट की वजह से मेकअप को करवाना। देन देयर वाज अ ऑफिस बॉय। अब यहाँ पर एक ऑफिस बॉय भी है जो यहाँ पर एक्टर, राइटर और डायरेक्टर बनने के लिए आया था, बट वो क्या बन के रह जाता है यहाँ पर, ही वाज जस्ट ओनली डूइंग द मेकअप ऑफ द क्राउड। लेकिन वो जस्ट यहाँ पर क्या करता है, क्राउड का मेकअप ही करता रह जाता है। एंड ही वाज फीलिंग जेलस फ्रॉम सुब्बू। और सुब्बू जो कि नंबर 2 के डायरेक्टर थे, उनसे बहुत ज्यादा जेलस फील करता था। अब एक बार क्या हुआ यहाँ पर इस स्टूडियो में, देखो बड़ा स्टूडियो था तो बड़े स्टूडियो में लोग तो आएंगे यहाँ पर। दैट्स व्हाई सम फेमस पर्सनैलिटी केम देयर एंड द अराइवल ऑफ द मोरल रीअर्मामेंट आर्मी। यहाँ पर ये लोग आते हैं जैमनी स्टूडियो पे एंड वाज स्टैब्ड टू स्प्रेड एंटी कम्युनिटी। मतलब जो कम्युनिटी होती है हमारे, हम डिवाइड कर देते कि नहीं ये रिलीजन है, ये रिलीजन है, भाई इसका ये धर्म है, इसका वो धर्म है। बट यहाँ पर उन्होंने एंटी कम्युनिस्ट बनकर आते हैं यहाँ पर, मिस हमको यूनिटी का पार्ट यहाँ पर पढ़ाते हैं। एंड फीलिंग इन साउथ इंडिया बाय प्रेजेंटिंग 2 plays एट द स्टूडियो एज दे न्यू द सिग्निफिकेंस। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ड्रामाज, वो प्लेस जो उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किए थे इस स्टूडियो में। द इन्फ्लुएंस एंड रीच ऑफ द स्टूडियो, जिससे कि सारा स्टूडियो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, बहुत इफेक्ट पड़ा था पूरे स्टूडियो का इसकी इन प्लेस की वजह से। आफ्टर सम टाइम अनदर गेस्ट हैज अराइव्ड। अब ये तो चले गए, अब एक दूसरा गेस्ट भी यहाँ पर आता है जैमनी स्टूडियो में, और वो कौन होता है, स्टेफन स्पेंडर होते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलते रहते हैं। अब यहाँ पर जो मोस्टली लोग थे वो क्या थे, मोस्टली लोगों को सिर्फ तेलुगु आती थी और उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। दैट्स व्हाई व्हाटएवर ही वाज गिविंग द ऑर्डर इट वाज नॉट फॉलोड बाय एनीवन एल्स। जो स्टेफन स्पेंडर आए यहाँ पर, ही वाज इंग्लिश पोइट, इंग्लिश राइटर, और इंग्लिश जो इन्होंने नॉवेल्स यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि भाई क्या वो बोल रहे, क्या ऑर्डर दे रहे, तो उनके ऑर्डर पूरे भी नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज लैंग्वेज। ओके, द नेक्स्ट इज गिवन देयर कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑफिस बॉय, कि ऑफिस बॉय यहाँ पर क्या करने के लिए आता है, एक्टर बनने के लिए आता है, बट वो क्या बन जाता है, यहाँ पर एक ऑफिस बॉय बन के रह जाता है जो कि मेकअप करता है किसका, क्राउड का। नेक्स्ट कोथामंगलम सुब्बू इज देयर, ही वाज कॉल्ड नंबर 2 Gemini स्टूडियो डायरेक्टर एंड ही वाज वेरी लॉयल, ही वाज वेरी ऑनेस्ट, चैरिटेबल। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा कैरेक्टर यहाँ पे किसका है, सुब्बू का। एंड नेक्स्ट इज देयर लीगल एडवाइजर और लॉयर, जिसको मैंने पहले बताया दैट ही वाज वेयरिंग पैंट टाई एंड कोट ओनली समटाइम्स, कभी कोई वो पहनता है यहाँ पर। लुक्ड अलोंग एंड हेल्पलेस, हमेशा अपने आप को हेल्पलेस शो करता है कि भाई वो तो बिल्कुल उसका कोई भी नहीं यहाँ पर, बिकॉज नो वन वाज स्पॉटिंग हिम। व्हाई नो वन वाज स्पॉटिंग, एज ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग एन एंड, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था कुछ ऐसे यंग एक्टर्स के करियर को लेके जिसका उन्होंने करियर का एंड कर दिया था। ठीक है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड जो करेक्टर, जो एक्टर्स थे, उनके उनकी जो करियर था उसको एंड करने का रिस्पॉन्सिबल किसको माना जा रहा था, यहाँ पर इस लीगल एडवाइजर को माना जा रहा था, क्योंकि उसको एडवाइस ही अच्छे से नहीं देनी आती थी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज वेयरिंग खादीज, खादीज, और जो गांधी जी के जैसे वेयरिंग होती है, खादी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर पुटिंग सच काइंड ऑफ क्लोथ। एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर लॉस्ट हिज जॉब व्हेन द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, और लॉस्ट हिज जॉब, और उसकी जॉब कब चली जाती है, जो वो बोला जाता है कि पोइट्स को आप अब अपने घर चले जाइए। ओके, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल एज कैरेक्टर्स आर गिवन टू यू। So it was chapter about poet and pancakes. I hope everybody would like this one. If you would like this one, you can give a thumbs up to the channel and subscribe it. And if you want to watch the rest of the videos, you can go to the playlist and you can watch the desirous video. Okay, thank you so much for watching the video. Have a fabulous day, everybody.